सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। उनके जैसा पैथोस वाली रोल कोई नहीं कर सकता। उनके आंखों में दर्द और मुस्कान होती थी। ये कौन कर सकता है? एक रास्ता भी कर सकते हैं। आंसू भरी ये जीवन की राही, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाएं। अब आप ही बताइए, हम राज साहब को कैसे भूल सकते हैं? भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाएं, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ। तुम्हें घर मुबारक, हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी। Yeah, Intenso, live and direct. She my Bollywood queen, what you seen? She my Bollywood queen, where you been? I see my Bollywood queen in my dreams. I see my Bollywood queen, we a team. She my Bollywood queen, what you seen? She my Bollywood queen, where you been? I see my Bollywood queen in my dreams. I see my Bollywood queen, we a team. First things first, your body is banging. Addictive like the shit that I'm slanging. We back to back, front to front, side to side. You got me shaking like an undercover hustler. I like your style, I like your flow, I like the way you move. Relax and kick back and take off your shoes. It's a little things that you do. Getting jiggy with your tongue ring through. I wanna be your Asian fuck, baby boo. Why you stressing, girl? You know I keep it true. Why? They don't call me heartbreaker for nothing. Come on, so let me break you up a little something, something. Come on, with your knee-high boots and your thong. You got me mesmerized singing this song. We do this shit, girl, all night long. Hold my hand while I drop this bomb. She my Bollywood queen, what you seen? She my Bollywood queen, where you been? I see my Bollywood queen in my dreams. I see my Bollywood queen, we a team. She my Bollywood queen, what you seen? She my Bollywood queen, where you been? I see my Bollywood queen in my dreams. I see my Bollywood queen, we a team.
pattern on this. She my Bollywood queen, what you seen? She my Bollywood queen, where you been? I see my Bollywood queen in my dreams. I see my Bollywood queen, we a team. She my Bollywood Come on, this queen, is how we roll. Intense, she my Bollywood live. Queen, where you been? What? I see my Bollywood queen in my dreams. I see my Bollywood queen, we a team. It's a heartbreak kid, don't leave me waiting. My Bollywood queen is what I'm tasting. I threw her to the back, I threw her to the front. She rose up, started dancing, shaking up a hump like a snake charmer. She getting faster, getting me so high just like the reefer. I wanna do something to amaze ya. I'll take you away and nothing'll faze ya. Ha ha, ha ha, ha ha. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। मृत्युंजय मंत्र वैदिक संस्कृति की दो महानतम धरोहरों में से एक है। यह मंत्र एक प्रार्थना है भगवान शिव के प्रति। इस मंत्र की व्याख्या करने से पूर्व मैं यह समझाना चाहूँगा कि किसी भी मंत्र पाठ से लाभ क्यों होता है। मित्रों, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि संगीत के 7 सुरों का आविष्कार किसने किया? सच पूछिए तो इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। जैसे कोई पूछे कि जल का आविष्कार किसने किया या वायु का आविष्कार किसने किया। संगीत भी, ध्वनि भी जल एवं वायु की तरह प्रकृति की मूल रचना का ही एक अंग है। हमने तो 7 सुरों की मात्र खोज की है, आविष्कार नहीं किया। ध्वनि तो प्रकृति का अंग है। झरनों की कलकल में, पक्षियों की चहचहाहट में, मनुष्य की हास में और रुदन में ध्वनि तो उस रचनाकार की इस रचना के प्राकट्य का एक अंग है। विज्ञान ने तो कुछ 100 वर्षों पूर्व यह सत्य स्वीकार किया है कि ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है, और तब उसके गुणों को फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ इत्यादि के विभिन्न नाम देकर ध्वनि की परिभाषा की है। किंतु हमारे अग्रजों ने, ऋषियों ने, महान तपस्वियों ने ध्वनि को आरंभ ही से दिव्य ऊर्जा का स्वरूप माना है। मंत्र उसी दिव्य ऊर्जा की आराधना का, स्तुति का एक पवित्र कथन है, एक विधि है उस दिव्य ऊर्जा को ध्वनि की तरंगों द्वारा मनुष्य तक पहुंचाने की। मृत्युंजय मंत्र ऐसा ही एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र का पाठ यदि विपत्तियों में किया जाए तो यह दिव्य ऊर्जा के एक सुदृढ़ कवच के समान सुरक्षा प्रदान करता है। इसका पाठ करने वाले पर किसी प्रकार की हीन शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। मानव जीवन में मुख्य रूप से हीन शक्तियों के 2 प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। एक वह प्रभाव जो मनुष्य स्वयं अपने भीतर अपनी विपरीत विचारधारा द्वारा उत्पन्न करता है। दूसरे वह प्रभाव जिसकी उत्पत्ति औरों द्वारा, दूसरों द्वारा की गई होती है। मृत्युंजय मंत्र अपनी अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा, कंपन द्वारा दैवी शक्तियों का, दिव्य शक्तियों का एक सुदृढ़ कवच सा निर्मित कर देता है, जिससे मनुष्य पर इन विभिन्न हीन शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता।
एक व्यक्ति अत्यंत उदास बैठा था। मैंने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे पास अधिक भूमि नहीं है। मैंने फिर पूछा, अधिक भूमि क्यों चाहिए तुम्हें? उत्तर मिला, क्योंकि मेरे पास अधिक गायें हैं। ध्यान दें, उसे अधिक भूमि चाहिए ताकि उसकी गायों को चरने की सुविधा हो। मैंने फिर प्रश्न किया, तुम्हें इतनी अधिक गायें क्यों चाहिए? उसने कहा, इसलिए कि मुझे अधिक भूमि चाहिए। अधिक भूमि इसलिए चाहिए क्योंकि अधिक गायें हैं, और अधिक गायें इसलिए चाहिए ताकि अधिक भूमि मिल सके। हम इस कभी न पूर्ण होने वाले भयंकर चक्र में फंसे रहते हैं और हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति का ह्रास होने लगता है। ये स्वयं द्वारा निर्मित हीन शक्तियों का जाल है। मित्रों, ध्यान दें, विचार ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। हीन विचार हीन ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं और उच्च विचार दिव्य ऊर्जा की उत्पत्ति करते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा मन एक अद्भुत प्रसारण केंद्र है। इसमें उत्पन्न होने वाले हर विचार के साथ एक विशेष ऊर्जा जुड़ी है। जैसे ही कोई विचार हम किसी व्यक्ति विशेष की ओर केंद्रित करते हैं, उस विचार से जुड़ी ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति आपके विषय में हीन विचार अपने मन में लाता है, तो उन हीन विचारों से संबंधित हीन ऊर्जा आपकी ओर प्रवाहित होने लगती है। यह औरों द्वारा निर्मित हीन शक्तियों का प्रभाव है। मृत्युंजय मंत्र इन दोनों ही प्रकार की हीन शक्तियों से मनुष्य की रक्षा करता है। इस मंत्र में स्वरों का ऐसा सुंदर संगम है कि जिससे अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं जो अत्यंत लाभकारी हैं। विशेषकर विपत्ति की स्थिति में, आपदाओं में इस मंत्र का जाप मनुष्य को दैवी सुरक्षा का कवच सा प्रदान करता है। मृत्युंजय मंत्र का आरंभ त्र्यंबकम शब्द से होता है। त्र्यंबकम का शाब्दिक अर्थ है 3 आंखों वाला, अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव की 2 साधारण आंखें हैं तथा तीसरी आंख दोनों भौहों के मध्य में, जहां हम हिंदू बिंदी लगाते हैं, यहां बताई गई है। 2 आंखें तो हर सामान्य मनुष्य के पास हैं, परंतु तीसरी आंख से अर्थ है विवेक की, अंतर्ज्ञान की दृष्टि का। और जब मनुष्य इस विवेक की, अंतर्ज्ञान की दृष्टि से संसार की ओर देखने लगता है तो उसका अनुभव कुछ और ही होता है। देवाधिदेव शिव तो साक्षात विवेक एवं ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए इन्हें त्र्यंबकम कहा गया है। मनुष्य में 2 आंखें वस्तुतः स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की प्रतीक हैं। यदि आप हिंदू धर्म में अर्धनारीश्वर की कल्पना पर विचार करें तो पाएंगे वहां आधे शिव हैं तथा आधी पार्वती। दोनों के अद्भुत संगम से साकार हुई है कल्पना अर्धनारीश्वर की। अर्थात हर मानव में कुछ पुरुषत्व है और कुछ स्त्रीत्व, क्योंकि हम सभी पुरुष एवं स्त्री के संगम से उत्पन्न हुए हैं। तो मनुष्य की 2 आंखें पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्रतीक हैं। पुरुषत्व के गुण हैं मनुष्य का घोर तार्किक होना, कुछ कर दिखाने की लालसा। स्त्रीत्व के गुण हैं प्रेम, कुछ ग्रहण करने की प्रवृत्ति। जब इन दोनों शक्तियों का, स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व का, तर्क एवं प्रेम का, कुछ कर दिखाने की लालसा एवं कुछ ग्रहण करने की प्रवृत्ति का संगम होता है मनुष्य की चेतना में, तब तीसरी आंख विवेक की, ज्ञान की जागृत होती है। पुरातन काल में जब शिष्य गुरु से दीक्षा लेने जाते तो गुरु शिष्य के माथे हाथ धर उसकी ऊर्जा की जांच कर लेते। अंतर्दृष्टि द्वारा देखते कि उसमें स्त्रीत्व की ऊर्जा अधिक मात्रा में है अथवा पुरुषत्व की। तत्पश्चात शिष्य की आवश्यकता अनुसार गुरु उसमें
आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का पोषण करते। मुख्य बात यह है कि जब यह दोनों स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की ऊर्जाएं मनुष्य के जीवन में ठीक मात्रा में मिश्रित होकर कार्यान्वित हों, तब जाकर विवेक एवं अंतर्ज्ञान की तीसरी आंख खुलती है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसी भाव का प्रतीक है। स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के संगम से उत्पन्न एक सुंदर जागृति का प्रतीक है। भगवान शिव की तीसरी आंख भी इसी जागृति की प्रतीक है। इसीलिए त्रयंबकम से संकेत है स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के मिश्रण का, प्रेम के मृदु भाव एवं तर्क के कठोर सत्य के संगम का, और इस समागम से उत्पन्न विवेक का, अंतर्ज्ञान का, और इन सब का मूर्त रूप है आराध्य देव शिव। त्रयंबकम। दूसरा शब्द है यजामहे, अर्थात हम पूजते हैं। ईश्वर के प्रति पूजा का पवित्र भाव लेकर इस मंत्र का पाठ किया जाना चाहिए। किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि मैंने तो ईश्वर को आज तक देखा नहीं है, तो कैसे विश्वास कर लूं कि ईश्वर है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे परदादा जी की फोटो लगी है, तुम उनसे मिले हो? उसने कहा नहीं। मैंने फिर कहा कि तुम्हारे तर्कानुसार वो कभी थे ही नहीं। वो हंस दिया, कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? उनके होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं स्वयं हूं। यदि वे न होते तो मैं कहां से होता? मैंने उससे कहा कि ठीक इसी तरह यदि ईश्वर न होते तो यह प्रकृति, यह विश्व, यह संसार, यह सुंदर रचना कहां से आती? उस रचनाकार के होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह रचना है। कितना सुंदर संतुलन है इस प्रकृति में, कितनी सुबोध है यह रचना। और कोई सुबोध रचना अचानक ही संयोगवश प्रकट नहीं हो जाती। हर संतुलित सुबोध रचना के साकार होने के पीछे एक सुबोध रचनाकार का होना आवश्यक है। ईश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह विश्व है। तो इस रचनाकार के प्रति, ईश्वर के प्रति पूजा का पवित्र भाव है यजामहे। जितना आप ये पवित्र पूजा का भाव मन में धरेंगे, उतना ही आपका दृष्टिकोण विश्व की ओर देखने का बदलने लगेगा। आप उस रचनाकार के प्रति पूजा का भाव धारण करेंगे तो इस रचना के प्रति आदर एवं सम्मान अपने आप ही जागेगा आपके मन में। इसीलिए हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं विष्णु सहस्त्रनाम, ललित सहस्त्रनाम इत्यादि वास्तव में स्तुति के रूप में की गई हैं। एक सहस्त्र नाम ईश्वर के एक ही स्वरूप के लिए कहे गए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर के स्वरूप की स्तुति की गई है। जितना आप ईश्वर के प्रति सम्मान का, पूजा का आदरपूर्ण भाव धारण करेंगे, उतना ही उसी प्रमाण में आपका दृष्टिकोण बदलेगा विश्व के प्रति, जीवन के प्रति। मित्रों, एक सिद्धांत है पूजा के मार्ग में, 3 प्रवृत्तियों का सिद्धांत। जब जब आप ईश्वर के प्रति पूजा की प्रवृत्ति का, सम्मान का भाव धारण करेंगे, तब तब आपके मन में हीन प्रवृत्तियां भी जागेंगी, जो आपको विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगी। यदि आप अपने भीतर जागी इन हीन प्रवृत्तियों के वेग को थाम कर ईश्वर के प्रति पवित्र पूजा के भाव को, आदर और सम्मान की ज्योत को प्रज्वलित रख सकें, तब तीसरी शक्ति, तीसरी प्रवृत्ति प्रवाहित होगी आप में, ईश्वरीय कृपा की, दैवी अनुग्रह और अनुकंपा की। और यह ईश्वरीय कृपा, यह दैवी अनुग्रह हीन प्रवृत्तियों का नाश कर देगा। आवश्यकता है आपके विश्वास की, आपके अटल समर्पण की। मृत्युंजय मंत्र में तीसरा शब्द है सुगंधिम। भगवान शिव सुगंध का पुंज है। संस्कृत में शिव नाम की परिभाषा की गई है कुछ यूं: शम मंगलम करोति इति शिवः, अर्थात जो मंगलकारी है
जो कल्याणकारी है उसका नाम शिव है। और इन मंगलकारी कल्याणकारी भगवान शिव को, उनकी ऊर्जा के प्रभाव को सुगंधिम शब्द से दर्शाया गया है। मित्रों, सुगंध और दुर्गंध दो पहलू हैं मानव की प्रवृत्तियों के। यदि आप किसी अहंकारी, अभिमानी, आत्मश्लाघी व्यक्ति की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि उसके अहंकार से, उसके अभिमान से दुर्गंध सी आती है। उसका सारा व्यक्तित्व ही दुर्गंधमय ऐसा लगता है। और जहां अहंकार और अभिमान नहीं होता, ऐसे मंगलकारी, कल्याणकारी व्यक्तित्व से सुगंध का प्रवाह होता है। संस्कृत में दो शब्द हैं, अहम एवं अस्मि। दोनों का ही अर्थ है मैं, परंतु अहम के मैं में अभिमान है, अहंकार की भावना है। अस्मि का मैं निष्कपट है। अस्मि के मैं में साधु भाव है। मनुष्य जब अहम से अस्मि तक की यात्रा पूर्ण कर लेता है, तब उसके व्यक्तित्व में कोमल भावनाओं की सुगंध उत्पन्न होती है। शर्मा जी के अंतरंग मित्र वर्मा जी बहुत दिनों बाद उनसे मिलने अपने नगर से उनके नगर गए। राह में वर्मा जी का सारा सामान चोरी हो गया। वे खाली हाथ अपने मित्र शर्मा जी के घर पहुंचे। शर्मा जी बहुत प्रसन्न हुए अपने मित्र को यूं अचानक इतने वर्षों बाद देखकर, और कहा, मित्र, तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। 1 सप्ताह बाद ही मेरे पुत्र का विवाह है। मैं स्वयं आज कुछ मित्रों को निमंत्रित करने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। वर्मा जी ने कहा, मैं कहां तुम्हारे साथ चल सकता हूं, मेरा तो सारा सामान ही राह में चोरी हो गया है। शर्मा जी ने कहा, भैया तुम तैयार तो हो लो, कपड़े तो तुम मेरे भी पहन सकते हो, और ये मेरा नया सूट तो आज ही सिलकर आया है, तुम इसे ही पहन लेना। वर्मा जी तैयार हो गए। शर्मा जी के नए सूट में सजकर बहुत जंच रहा था शर्मा जी का नया सूट उन पर। दोनों मित्र साथ साथ एक घर पहुंचे विवाह का निमंत्रण देने। अब निमंत्रण तो दिया जा रहा है शर्मा जी के पुत्र के विवाह का, और सारे ही घर वालों की आंखें लगी हैं वर्मा जी पर, जिनका व्यक्तित्व नए सूट में बहुत खिल रहा था। शर्मा जी ये स्थिति कुछ देर तो सहन करते रहे, और जब रहा नहीं गया तो कह उठे, अरे भाई साहब, मैं तो आपसे मिलवाना ही भूल गया। ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं वर्मा जी, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। कई वर्षों बाद आज हमारी भेंट हुई है। बहुत ही सफल व्यक्ति हैं जीवन में वर्मा जी, परंतु ये जो सुंदर सूट पहने बैठे हैं यह मेरा है। वर्मा जी बड़े खिन्न हुए यह अपमानजनक परिचय सुनकर। बाहर निकलते ही उन्होंने शर्मा जी को आड़े हाथों लिया, कहा कि यह क्या बात हुई कि आपने सूट के बारे में इस तरह से कह दिया सबके सामने? क्या आवश्यकता थी इस तरह से मेरा अपमान करने की? मैंने तो आपसे सूट नहीं मांगा था। शर्मा जी को अपने भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने अपने मित्र से क्षमा याचना की, कहा कि भैया मुझसे भूल हुई, आगे ध्यान रखूंगा। बात आई गई हो गई। दोनों मित्र एक और घर पहुंचे। वहां भी बस वही हाल, सारे के सारे घर के सदस्यों का ध्यान वर्मा जी पर केंद्रित। सूट उन पर बहुत ही फब रहा था। शर्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि घर वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, पर उन सब पर तो वर्मा जी और उनके नए सूट का आकर्षण छाया हुआ था। अंत में जब रहा नहीं गया तो शर्मा जी बोल पड़े, भाई क्षमा करना, मैं आप लोगों का परिचय ही करवाना भूल गया। ये मेरे अत्यंत ही प्रिय मित्र वर्मा जी हैं, शानदार व्यक्तित्व के धनी, जीवन में सफल, आत्मविश्वास से भरपूर। और ये जो नया सूट दमकता हुआ पहने बैठे हैं यह मेरा नहीं है। वर्मा जी ने फिर बाहर आने पर शर्मा जी को लताड़ा कि यह क्या व्यवहार है? आपने बात को घुमाकर कही तो फिर वही बात। येन केन प्रकारेण घर वालों पर प्रभाव तो वही पहले वाला हुआ। शर्मा जी ने फिर किसी तरह बात संभाली।
अपनी पुरानी मित्रता का हवाला देकर वर्मा जी का क्रोध शांत किया। वर्मा जी बड़ी मुश्किल से किसी तरह तैयार हुए अगले घर जाने के लिए। जब दोनों मित्र अगले घर पहुंचे तो फिर वही हाल। सारे के सारे घरवाले वर्मा जी के सुंदर व्यक्तित्व पर लट्टू, उनके नए सूट से प्रभावित। शर्मा जी से फिर रहा नहीं गया। कुछ देर तो सहन करते रहे, पर अंत में कह उठे, भाई क्षमा करना, मैं तो आपका परिचय ही करवाना भूल गया। ये मेरे बड़े ही पुराने अंतरंग मित्र हैं वर्मा जी, बहुत ही सफल व्यक्ति। हम दोनों कॉलेज में साथ हुआ करते थे। कॉलेज के समय से ही आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती वर्मा जी में। और ये जो शानदार सूट पहने बैठे हैं, यह इन्हीं का है। मित्रों, मनुष्य का अहंकार कई स्वरूपों में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होता है तथा मनुष्य के कई दुख अहंकार जनित हैं। अधिकांश मनुष्य इस अभिमान, इस अहंकार के दोराहे पर दुखी खड़े हैं। कुछ हो पाने की लालसा लिए, कुछ न हो सकने के डर से पीड़ित। कुछ होने की लालसा और कुछ न बन पाने का डर, ये दोनों ही मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं, क्योंकि यह दोनों ही भावनाएं अहंकार जनित हैं। अहम से अस्मि तक का प्रयाण इसीलिए आवश्यक है। और मनुष्य जब यह कायाकल्प कर लेता है अहम से अस्मि का, तब उसका व्यक्तित्व सुगंधिम हो उठता है। भगवान शिव प्रतिमूर्ति हैं इस मंगल और कल्याण की सुगंध का। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पुष्टि अर्थात पोषण तथा वर्धनम अर्थात वृद्धि, विकास। पोषण और विकास से अर्थ है आध्यात्मिक पोषण और विकास का, नाम और यश का विकास नहीं। भौतिक विकास की बात नहीं है, आध्यात्मिक विकास का अर्थ है। और इस विकास का अनुभव मनुष्य मात्र मौन तथा शून्य की अवस्था में ही कर सकता है। कमल के फूल की ओर देखिए। पंख में रहकर पंकज, कीचड़ की गंदगी में रहकर भी इतना सुंदर कमल का फूल। क्या हम इसी तरह इस विश्व में, जहां ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा का कीचड़ है, इन सब विषमताओं के बीच रहकर भी क्या हमारा व्यक्तित्व कमल के फूल की तरह निष्कपट, निष्कलंक खिला रह सकता है? जीवन के कोलाहल में यदि हम मौन और शून्य की सुंदरता का अनुभव कर सकें, तब आध्यात्मिक विकास संभव है। आपने कभी एक अच्छे तैराक को देखा है? समुद्र में बड़ी सी लहर आ जाए तो अच्छा तैराक उसके साथ संघर्ष नहीं करता, अपने शरीर को ढीला छोड़कर उस लहर के साथ बहने लगता है और सही समय पर अपनी दिशा ढूंढ लेता है। ठीक इसी तरह जीवन में भी आवश्यकता है विषम परिस्थितियों में शांत रह सकने की क्षमता की। जितना आप अपने शरीर, मन, भाव एवं बुद्धि को शांत रख पाएंगे, उतना ही आप मौन एवं शून्य की स्थिति के समीप होंगे और इस मौन एवं शून्य की स्थिति में ही ज्ञानोदय संभव है। एक सन्यासी ध्यान में मग्न था। एकाएक मेंढकों के टर्राने की ध्वनि से उसके ध्यान में बाधा पड़ी। सन्यासी ने उठकर खिड़की से बाहर झांका और कहा, अरे मेंढकों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक सन्यासी ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रहा है और तुम्हारे टर्राने की कर्कश ध्वनि उस प्रार्थना में बाधा उत्पन्न कर रही है? और तभी मेंढकों ने टर्राना बंद कर दिया। सन्यासी फिर से अपने स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने लगा। तभी मानो आकाशवाणी हुई, हे सन्यासी, सच तो यह है कि तुमने मेंढकों की प्रार्थना में बाधा डाली है। तब जाकर सन्यासी ने समझा कि वास्तव में मेंढकों का टर्राना उनकी प्रार्थना थी।
उसने फिर से बाहर झांका और कहा, हे मेंढकों, अपनी प्रार्थना बंद न करो, इसे चलने दो। लौटकर जब वो सन्यासी ध्यान करने बैठा तो उसने अनुभव किया कि वास्तव में मेंढकों की प्रार्थना ने उसकी अपनी प्रार्थना को और गहन बना दिया है। उसने पाया कि वह और भी गहरा डूब गया है अपनी प्रार्थना में। मित्रों, आप जितना ही मौन और शून्य की स्थिति में गहरे जाएंगे, उतना ही आध्यात्मिक विकास के मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। मात्र शुष्क तर्क आध्यात्मिक विकास की राह नहीं है। आध्यात्मिक विकास तो अंतर की गहराइयों में जाकर होता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, अर्थात जैसे लौकी अपनी बेल में रहती है, बाह्य रूप से तो लगता है कि लौकी अपनी लता में जुड़ी हुई है, पर आंतरिक रूप से जैसे ही लौकी पक जाती है, अपनी बेल से अलग हो चुकी होती है। ठीक इसी तरह से हे ईश्वर, मुझे संसार में बाह्य रूप में आसक्ति भी हो, तब भी वास्तव में आध्यात्मिक परिपक्वता और इसके फलस्वरूप आंतरिक रूप में विरक्ति का भाव दो। जब ऐसी आध्यात्मिक परिपक्वता आ जाए, तभी मृत्युंजय, मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक घटना है। एक महान तार्किक विद्वान ने एक बार रामकृष्ण परमहंस को चुनौती दी कि वह उन्हें शास्त्रार्थ में तार्किक द्वंद्व में पराजित करके दिखाएगा। रामकृष्ण परमहंस महान संत थे। तार्किक विवाद से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी उन्होंने उस विद्वान को बुलाया और अवसर दिया कि वह अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे। विषय था ईश्वर है या नहीं। और सचमुच उस तार्किक विद्वान ने समुचित तर्क देकर धीरे धीरे यह साबित कर दिया कि ईश्वर नहीं है। रामकृष्ण परमहंस उसके हर तर्क को हर पग पर ध्यान से सुनते रहे और सराहना करते रहे। जैसे जैसे वह विद्वान इस निष्कर्ष के समीप पहुंचता गया कि ईश्वर नहीं है, वैसे वैसे रामकृष्ण जी की सराहना और अधिक बढ़ती गई। घोर प्रशंसा करने लगे वे उसकी। तार्किक विद्वान कुछ समझ नहीं पाया। कहने लगा, रामकृष्ण जी, आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे हर तर्क की प्रशंसा करके, सराहना करके आप स्वयं अपनी हार का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया, मैं हार या जीत नहीं जानता। तुमने जिस सुंदरता से अद्भुत तर्कों द्वारा यह साबित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, मुझे तो उन सुंदर तर्कों में ही ईश्वर का वास दिखाई दे रहा है। तर्क में इतनी अद्भुत सुंदरता बिना ईश्वर की शक्ति के आ ही नहीं सकती। मित्रों, सांसारिक तर्क से, हार जीत के मिथ्या विवाद से ऊपर उठकर ही ईश्वर प्राप्ति की संभावनाएं खुलती हैं। दूध को जब अच्छी तरह मथ लिया जाता है, तभी मक्खन बनता है, और मक्खन पानी में डाल दिया जाए तब पानी में रहकर भी अलग रहता है। दूध को वैसे ही पानी में मिला दिया जाए तो वो घुल जाएगा पानी में, अपनी पहचान खो देगा। ठीक इसी तरह मनुष्य जब आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, तब संसार में बाह्य रूप से आसक्त रहकर भी वास्तव में आंतरिक रूप से विरक्त हो सकता है। वैसे ही जैसे लौकी बाहर से तो लगती है कि बेल से जुड़ी है, किंतु पकते ही आंतरिक रूप से वास्तव में लता से अलग हो जाती है। और जब ये आध्यात्मिक परिपक्वता मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो मृत्यु का भय नहीं रह जाता। मृत्यु उसके लिए मात्र एक घटना रह जाती है जीवन की, आत्मा की यात्रा में। उर्वारुकमिव बंधनात्
मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। हे ईश्वर, लौकी की तरह से संसार में आसक्त रहकर भी विरक्त रह सकूं, ऐसा बनाओ मुझे, ताकि मृत्यु के भय बंधन से मुक्त हो सकूं। और यमामृतात्, अमरत्व से मुक्त न करो मुझे। जिस तरह एक नदी बहती ही रहती है बिना किसी बंधन के और अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक इसी तरह हे ईश्वर, मेरा सांसारिक प्रवाह बंधन मुक्त हो, मृत्यु से, मृत्यु के भय से मुझे मुक्ति मिले, न कि मामृतात्, अमरत्व से। हे ईश्वर, आप में समाहित होकर अमर हो जाना ही मेरी नियति हो। मित्रों, यह इस मंत्र का संपूर्ण सार है। इस मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? सुबह सवेरे एक कटोरी में साफ जल लेकर मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और सारे घर में इस जल का छिड़काव करें। इस तरह से अपने सारे घर को मृत्युंजय मंत्र की दैवी शक्तियों का सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि हीन शक्तियां प्रभाव न डाल पाएं। विपत्ति के समय, आपदाओं की स्थिति में मात्र आंखें मूंद कर अपना ध्यान भगवान शिव की ओर केंद्रित करके मन में पूजा का भाव लेकर मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और विश्वास रखिए, इस मंत्र की दैवी शक्तियों का अद्भुत सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करेगा। हरिओम तत्सत।
चले, उन्हें क्या डराएंगे फासले। हमें जाना है दिल के नगर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ, मेरे पास आ। हमें साथ चलना है उम्र भर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ, मेरे पास धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तना दरे ना धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तना दरे ना ओ दनि दर दर तानी तना दर ना ओ दनि दर दर तानी तना दर ना धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तना दरे ना ओ दनि दर दर तानी तना दर ना ओ दनि दर दर तानी तना दर ना तेरे दिन ना ओ दानी दिला धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तना दरे ना
धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना दर दिन ना ओ दनि दरदा धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना बारे रे सा सा रे नी सा सा रे नी पा बारे रे सा सा रे नी सा सा रे नी पा मा रे सा रे नी सा रे मा रे सा रे नी सा रे सा सा आनम तरम तम तरानम 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 आनम तरम तम तरानम 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 तम तरानम तम तरानम तम तरानम तरानम तम तरानम तम तरानम 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 अमरे दनि 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 बाबा तरानम 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 लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम हैं। मन में मेरे राम है, तन में मेरे राम है। लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम है। लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम है। मन में मेरे राम है, तन में मेरे राम है।
दर्शन से ही श्री राम के अंतर का घट भर जाए, जिनके चरणों की रज से ही एक शिला भी तर जाए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के काम है। लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम हैं। गंगा पार उतारे केवट और कहे हे रघुराई, भवसागर से पार उतारो मैं ना चाहूं उतराई। प्रभु चरणों की सेवा के कब होते कोई दाम है। लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम हैं। जल से थल तक, थल से नभ तक राम समाहित हर क्षण में। राम ही पूरब, राम ही पश्चिम, राम ही उत्तर दक्षिण में। राम नाम ही सकल जगत में आगे पूर्ण विराम है। लगता मेरे अंतर मन में जैसे चारों धाम हैं। मन में मेरे राम है, तन में मेरे
श्रीकृष्णं शरणं मम 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 श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं भज गोपालं दीनदयालं वचन रसालं तापहरं 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 श्रीकृष्णं शरणं मम 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 श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं श्रीकृष्णं शरणं
सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भज गोपालं दीनदयालं वचन रसालं तापहरं 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 भज गोपालं दीनदयालं वचन रसालं तापहरं। श्रीकृष्णं शरणं मम 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 श्रीकृष्णं शरणं मम
श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भज गोपालं दीन दयालं वचन रसालं तापहरं 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 भज गोपालं दीन Samajawara gamana Samajawara gamana Samajawara gamana Sadhu great 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 Samajawara
मासूम चेहरे की क्या बात यार, मासूम चेहरे की क्या बात यार, हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। चारों तरफ है छाया खुमार, चारों तरफ है छाया खुमार, हमको तो होने
सबकी बचाया है हमने, निगाहों से सबकी बचाया है हमने। तुम्हें कुछ खबर भी है जाने बाहर, तुम्हें कुछ खबर भी है जाने बाहर। हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। मासूम चेहरे की क्या बात यार, चारों तरफ है छाया खुमार। हमको तो होने लगा है प्यार, हमको तो होने लगा है प्यार। सुंदरिया कंपनी देने आती क्या, हाय बोलती छोकरिया बॉयफ्रेंड से मिलती क्या। नो प्रॉब्लम सुंदरिया कंपनी देने आती क्या, हाय बोलती छोकरिया बॉयफ्रेंड से मिलती क्या। कॉलेज तो बोर बोर, टीनेज का जोर जोर, फूलों की ओर ओर, खबरों का शोर शोर। कॉलेज तो बोर बोर, टीनेज का जोर जोर, फूलों की ओर ओर, खबरों का शोर शोर। नो प्रॉब्लम सुंदरिया कंपनी देने आती क्या, हाय बोलती छोकरिया बॉयफ्रेंड से मिलती क्या। सागर में इतना पानी प्यासे के काम न आए, किस काम का पानी वो आए। कितनी ये माशूकाएं आशिक के काम न आए, किस काम की माशूका वो। ऐसे ही चल रही अपनी ये जिंदगी, ऐसे ही चल रही अपनी ये जिंदगी। जीन्स पहन ली पैंट पहन ली कुड़ी फसीना, तरह तरह के बाल कटाए कोई पटीना। कैसा पागल दिल है ये कोई लवर मिली ना, मुझ सारी मुंडली पर मुंबई गर्ल मिली ना। नो प्रॉब्लम सुंदरिया कंपनी देने आती क्या, हाय बोलती छोकरिया बॉयफ्रेंड से मिलती क्या।
यही मेरी आशा अब तो आए। महिलाओं की बस में तो किस्मत मेरी खुल जाए, कंडक्टर मैं बन जाऊं जो। स्कर्ट भी तो हो गई छोटी, नीयत क्यों ना हो खोटी। स्कर्ट भी तो हो गई छोटी, नीयत क्यों ना हो खोटी। हाई हील्स है लंबी लंबी तेरी हसीना, सीढ़ी पहन के सीढ़ी चढ़े तो छूटे पसीना। कैसा पागल दिल है ये, कोई लवर मिली ना। पूछ सारी मुंडली पर मुंबई घर मिली ना। नो प्रॉब्लम सुंदरिया, कंपनी देने आती क्या। हाय बोलती छोकरिया, बॉयफ्रेंड से मिलती क्या। नो प्रॉब्लम सुंदरिया, कंपनी देने आती क्या। हाय बोलती छोकरिया, बॉयफ्रेंड से मिलती क्या। कॉलेज तो बोर बोर, टीनेज का जोर जोर।